Ladies and gentlemen, I connect with you all and with this podcast, and hence I call this session as Connect to Care, because without connect, there is nothing in this world that we can achieve. We need to connect to the universe, we need to connect with the people around us, and as a parent coach, we need to connect with each other and we need to connect with our children. Today on the panel, I have Anupama Mola ma'am, who is a psychologist. In fact, I should add renowned psychologist. She's a NLP practitioner. Already she has written a book, as I always say. And so she's an author and someone who has deep knowledge and great insight into the world of children. And as a parent coach, I believe she's always striving hard to help people. The second person who is on my panel is Mrs. Pushpa Vashisht, an ex-principal, a mental health, uh, uh, you know, a mental health helping person. She is reaching out to people and helping them out as a volunteer. She's an NLP practitioner and she's a regular like Anupama ma'am on my platform. As you all know, yesterday we connected with our mid schoolers and we tried to understand what our mid schoolers are going through because, like I said yesterday, it's new normal now to call the mid schoolers as tweens because they have the problems of the teenager and yet they are not teenagers. So, if जैसे हिंदी में बोलते हैं कि मिट्टी गीली होती है तो मेरे ख्याल से टीनेजर की मिट्टी तो अब हार्ड होने लगी है बट मिड स्कूलर की मिट्टी गीली ही रहती है तो हम उसको शेप दे सकते हैं मगर आज के इस माहौल में डिजिटल मीडिया और मेरे ख्याल से ये मेरा बहुत गहरा आई स्ट्रांगली बिलीव टुवर्ड्स दिस दैट nutrition and what they consume inside and what they consume from outside nutrition and digital media इन दोनों ने हमारे टीनेजर्स को बहुत जल्दी उनको बड़ा करने में एक कंट्रीब्यूट किया है चाहे वो ठीक से बड़े हों या वो लीग से अलग हट के या ठीक से बड़े ना हो इसमें भी कंट्रीब्यूट किया है What I'm trying to tell you here is today my esteemed panel is going to handle questions which will help us to make our troubled teens into confident, compassionate, and connected teens. So, are we ready, Anupama ma'am and Pushpa ma'am? Great. Yes, So, ma'am. let me start the uh, podcast by saying that teen is that cat which comes to you, and when you pet the cat and say "khana kha liya," so the cat will never say like a dog will always come and pet you and pet you back. But a teen, like a cat, will never pet you back, but will actually hiss and say meow. And that meow will not be very happy meow. Will be don't touch me and don't mess with me. Do you agree with me? Yes. And like a cat, a teen will come to you when they need you and when they want you to pet them, but will never ask you to pet them. They will expect you to understand that they have to be petted like a cat. Yes, ma'am? Yes. I mean, am I making my some sense in this? Because I've actually done this analogy that आप अगर एक कैट को देखो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वही जनरली एक टीम का बॉडी लैंग्वेज होता है आई नो इट ऑल आई डोंट नीड यू आई ओनली नीड यू व्हेन आई नीड यू Yes. right so Yes. anyway that is a team for us and इंडियन सोसाइटी में टीनेजर को जितनी प्रॉब्लम शायद होती होगी क्योंकि अगर पेरेंट्स ही रेडी नहीं है उन्हें समझने के लिए तो बाहर वाले कोई मदद नहीं करेंगे इसलिए एज अ पेरेंट कोच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रेन our parents to become better parents. So, Anupama ma'am, my first question. Now, mid schoolers, smart children, they've learned a lot of things, and now our teens are ready. They are in their 16, 10th, selections have to be done, career confusion, future anxiety. Let me give you an example.
Abir is a 17-year-old child who enjoys dramatics, who enjoys singing, and he thinks that I can make, or even enjoys writing books, and he thinks I can make a career out of it. But the parents have other opinions, and they are also under pressure. Abir is also under pressure. How are we as parent coaches going to help them? Over to you. Yes, ma'am. This kind of question always troubles most of the parents. And even I have gone through this, ma'am, while my children were growing up they were in their teens. And this usually starts from class ninth onwards, when parents are also in a dilemma and the children are also facing this kind of challenge as to what subjects to take. And when the children are in class 10th, then the pressure starts building up so much, because in class 11th they have to start streamlining their subjects, whether they want to get into arts, science, or commerce, whatever field they are in. So what happens is, ma'am, if in a case like this, there are a lot of cases in which a child wants to get into a field which is, in our country, we will call it unorthodox. I'm not talking about the Western world, less restricted to our own country, wherein a child wants to become a dancer or a musician, or even get into beatboxing or tattoo making. So all these kind of, I'm sure, ma'am, you'll agree with me, all these kind of professions we had not even heard of when we were growing up. We had only four basic professions. That was teaching, MBA, doctor, and engineer. Yes. So out of these four, one profession which was very well suited for a lady was being a teacher, which was which, Okay. which was a very safe bet, because then she can take care of the household, she can take care of her aspirations also. But now if we are bringing that scenario here, Mm. does it work like that? No, Mm. because the situations have changed, the mindsets have changed, and the Mm. way we are raising the children in this technological world, in this digital, where everything is gone digital. So what I would say, that when it comes to such kind of cases, especially school counselors face all these kind of problems, because parents flock to them and they say कि my child is not agreeing, बच्चा मान नहीं रहा है, उसने तो एकदम जिद कर ली है कि उसको म्यूजिक में ही जाना है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करे। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या जाननी है कि Mm. पेरेंट्स क्यों ऐसा सोचते हैं? पेरेंट्स ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि दीज काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट आई मेंशन आर Mm. सिंबल्स ऑफ स्टेबिलिटी, Mm. सक्सेस, Mm. एंड सोशल प्रेस्टीज। स्टेबिलिटी मीन्स, मैम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई आपकी, Absolutely. कि Absolutely. अगर बच्चा इंजीनियरिंग में चला गया है या डॉक्टर बन गया है, इवन टीचर, मैम, आई वुड से, अगर टीचर भी है तो एटलीस्ट एट अ सर्टेन लेवल वो कुछ स्टेबल जॉब है, एंड मंथली उसकी सैलरी आ रही है, तो Correct. वो स्टेबिलिटी है। Mm. Success to each and everyone means different Correct. from everyone's perspective. But Correct. if I'm talking from a middle class family mentality, then I Correct. would say कि parents would say कि भाई ये काम कर लो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, बिल्कुल. आगे Definitely. हम लोग को नहीं देखना पड़ेगा। एंड स्पेशली इफ इट इज अ बॉय, अगर लड़का है तो मैम क्लास 10 से ये काम शुरू हो जाता है, 9 से शुरू हो जाता है। और अगर लड़की है तो ये जो थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस से हम आगे बढ़े हैं खुद, आर बिलीफ सिस्टम, आर वैल्यूज, आर कल्चरल ओरिएंटेशन, उन सब चीजों को अगर हम देखें तो हम बच्चों को बोलेंगे, लड़की को बोलेंगे डॉक्टर मत बनो, टीचिंग के जॉब में चली जाओ, अच्छा है। तो यू कैन बैलेंस बोथ द थिंग्स। तो मैम Mm. ये एक चीज होगी। अगर वो म्यूजिक के वर्ल्ड में जाना चाहता है तो पेरेंट्स को सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि इट इज वेरी रिस्की, अनस्टेबल है। Mm. There is, it is not that you put in something and you get the result immediately. It is not like you give an exam like NEET or JEE and you get an immediate result. That does not happen in the world of music or dance, or even if you get into things like baking or cooking or fashion designing. All these things are time taking. Mm. So parents get very anxious about this fact कि हमारा बच्चा आगे चल के अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा।
दूसरा मैम आपको 1 मिनट में यहाँ पे हाँ जावेद खान करके एक बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने ना एक बहुत अच्छी सी बात कही थी कि हमारे पेरेंट्स हमें अ, हमें इसलिए ऐसे प्रोफेशंस की तरफ नहीं जाने देना चाहते क्योंकि वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते, बस और कुछ नहीं है। एंड आई थिंक आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि टाइम टेकिंग है वो, राइट? Yes, टाइम टेकिंग है, absolutely. और दूसरा मैम पेरेंट्स के मन में बहुत डर होता है। अगर आप देखिए तो अगर उन्हें लगता है कि अगर इस फील्ड में वो सक्सेस नहीं हो पाए, या हम्म, फॉर दैट मैटर आई हैव सीन लॉट ऑफ चिल्ड्रन डूइंग वेल, वेरी वेल इन स्पोर्ट्स, दे हम्म, विल टेल देयर चिल्ड्रन कि इसको एज अ हॉबी रख लो, बट हम्म, प्रोफेशन मत बनाओ। बिकॉज हम्म, उनके दिमाग में ये रहता है कि हाउ मेनी विराट कोहलीज, हाउ मेनी धोनीज कैन बी हम्म, प्रोड्यूस्ड। एंड हम्म, अगर वो बच्चा इतना पैशनेट है और उसको अगर टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैम ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर वांटिंग टू परस्यू, अगर हम्म, आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हो तो वो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म, Practice makes a man perfect. Anything which has been Definitely. done repeatedly, it हम्म, becomes a success story for anyone. And the हम्म, sooner it starts, the better it is. तो मैम हम्म, अगर बच्चा वो चीज परस्यू नहीं कर रहा है, तो पहली चीज तो हम्म, उसके लिए डिप्रेशन, बर्नआउट, हम्म, एंजाइटी, ऑल हम्म, सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। अगर मान लीजिए बच्चे को आपने फोर्स कर भी दिया कि चलो ओके तुम नीट की कोचिंग कर लो, गेट अलोंग विद इट, द चाइल्ड इज इन क्लास 11, वो कर तो रहा है, पर उसका मेंटल हेल्थ क्या है उसके बारे में पेरेंट्स बात भी नहीं करते, और उनका खुद का जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में भी बात नहीं करते, बिकॉज दैट हम्म। इज हाउ दे हैव बीन रेज्ड। उनकी खुद की अपब्रिंगिंग क्या है। मैम इसमें यहाँ पे मैं आपको I would like to sum it up by saying you can continue after that, because then हाँ I'll understand and we'll get a direction. So the most important thing which I have in this 3-4 minutes I've understood is that what they are lacking is communication. Because वही हमारा हमने लर्न किया था कि हमें बोला जाता था, इंस्ट्रक्ट किया जाता था, कम्युनिकेट नहीं किया जाता। Communication is बिल्कुल. two-way, instruction is you listen and other person speaks. So one takeaway is that I need to keep my communication channel open, right? Yes, ma'am. Yes. Continue. मैम दूसरा एक और चीज प्रॉब्लम करता है प्रेजेंट की, अगर आप बैलेंस कर सकते हैं म्यूजिक को इंजीनियरिंग के साथ, you can even talk to the professionals, you can get an aptitude test. First of all, an aptitude test of the child has to be done before getting a child into some kind of professional field. For example, अगर बच्चा का इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड है ही नहीं, Hmm. तो व्हाट आर यू परसुइंग। Hmm. लेट्स से अगर बच्चे का बेंट ऑफ माइंड वैसा नहीं। दूसरा चीज मैम पर्सनालिटी, बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, whether the child is ready to communicate, whether the child is introvert, whether the child is an extrovert, whether the child likes to travel, whether likes to be in comfort zone, what are his financial goals, what are his Hmm. educational goals। तो इतनी Hmm. सारी चीजें हैं जिसके बारे में पेरेंट्स ना कभी डिस्कस करते हैं, ना Hmm. बच्चे को पता है। पेरेंट्स को Hmm. जब पता ही नहीं है तो उस पर डिस्कस, मैम एज यू सेड कम्युनिकेशन इज द की। तो Hmm. मैम कम्युनिकेशन तो तब होगा जब पेरेंट्स के लेवल पे अवेयरनेस होगी। अगर Hmm. Right. पेरेंट्स के लेवल पे ही अवेयरनेस नहीं है, तो इस तरह के वो सवाल अपने बच्चे से पूछेंगे ही नहीं। Hmm. वो सीधे बोल देंगे कि भाई अगर, अच्छा मैम एक और मैं आपको केस सिनेरियो बताती हूँ जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, बच्चा Hmm. इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं था, उसका Hmm. लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत लो था, Hmm. बस उसका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई था। Hmm. पेरेंट्स वर इन डिनाइल, वो Hmm. मानने को तैयार नहीं। उन्होंने काउंसलर को बोल दिया कि मैं अपने बच्चे को यही कराऊंगा, भले वो फेल हो या पास हो, ये मेरी प्रॉब्लम, because the Hmm. child was a minor, the decision Hmm. had to be taken by the parents. So Hmm. what is the dilemma, ethical dilemma of the counselor? She wants to do it, she wants to help the child, but she cannot force the parents because they are coming from a cultural belief। एक उनका बिलीफ सिस्टम है, उनका एक वैल्यू Right. सिस्टम है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं। पेरेंट्स मानने को नहीं तैयार है, दे आर रेडी फॉर अ फुल टाइम फेलियर ऑफ द चाइल्ड, Hmm. एंड द काउंसलर नोज इट वेरी वेल। तो इसमें एक सिंपल सा चीज है कि अगर काउंसलर को भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, एक
डायलॉग होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज को बैठा के उनके साथ मिल के बात करनी चाहिए, एंड दे कैन कम टू अ कॉमन ग्राउंड, हिट अ कॉमन ग्राउंड. Child wants to get into music, parents want to get into engineering. Music industry में you can get into production, music production. You can get into audio engineering. That is again related to engineering, or you can do a dual degree. You can do a majors in engineering and a minor in music. Why not? So इस चीजों को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता है? तो अगर आप ये चीज अगर आप अपने बच्चे को ये भी बोल सकते हो कि बेटा आप इस चीज को परस्यू करो, साथ साथ हम आपका ये भी करा देते हैं, तो बच्चा भी खुश, आप भी खुश. मैम आपसे मैं एक इसमें I will have to intervene here. What happens is in 90% of the middle class families, and I'm talking in terms of, because I spend most of my time in the north of India, and I'm not talking about those families where both the parents are very educated and are empowered women. I'm talking about where the mother is still getting into the zone of getting empowered or learning. She knows a lot of things, but she doesn't have the bandwidth to actually express herself because financial independence is not with her. In such conditions, even though the mother wants to help the child, even though the father may be wanting to help the child, because of the societal pressure and the family's pressure, buckles and is not able to give support to the child. See, the point here, what I'm trying to make is, in such situations and circumstances, as a family, the mother, the father, and the child, they all come under tremendous kind of stress, pressure, anxiety. Now, we have spoken about the parental anxiety. They don't know. You have beautifully covered it. But let's look, ma'am, and I am only coming to Anupama, ma'am, to you. Let's look from the shoes of the student, what the child is going through. Could you throw some light over there? मैम स्टूडेंट के ऊपर भी तो है ना प्रेशर कि वो अपने पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस कि माय पेरेंट्स लेट्स से कम फ्रॉम मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज. अगर मिडिल क्लास फैमिली को हम बिलोंग करते हैं एंड पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड मनी इन द कोचिंग और इन द ट्यूशन एंड ऑल दैट, now child is under such a lot of pressure, tremendous pressure. Now how do I tell my parents that I don't want to do this course? There is a financial stress जबरदस्त, क्योंकि घर में पूरे दिन यही बात होती रहती है कि अगला क्या करना है, अगला इंस्टॉलमेंट कब देना है. तो इस तरह की बातें जब पेरेंट्स कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है. तो अब He's बच्चा भी feeling guilty also. हाँ, बच्चा गिल्ट, Guilt. तो बच्चा कभी कभी गिल्ट में आके भी इन सब चीजों को करता है. तो अगर आप खाली पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट कि बच्चा मतलब पेरेंट्स ही इस चीज को फेस कर रहे हैं. जो पेरेंट्स का जो लोड है वो बच्चा भी तो ले रहा है ना मैम. तो उस चीज के साथ वो जो स्ट्रेस है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, जो कि अभी मैंने आपसे बात करी, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट ओपन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो ये चीजों को मैम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब आप अपने बच्चे से बात करते हो. तो yes ma'am, you would like to add something to it or should I continue? No, you can. I'll be coming to ma'am. I'll give it open, for an open discussion. I'll come back to Anupama ma'am after the first question to Pushpa ma'am. And Pushpa ma'am, since you're dealing with mental health problems now, uh, word depression is used so loosely now. Even a cat and a dog becomes depressed sitting quietly, or a 3-year-old says, I'm depressed. I've seen so many memes where the child says, I'm depressed. The word depression, I used to use only for meteorological department. I had no idea when I was growing up what is depression. I thought sea mein depression aata hai, to cyclone aata hai. You get my point? It's as a newer word when we were growing up. We hardly use mental health, whereas sabko hota tha. So now that it is so loosely used, now that everybody is talking about it, how do we actually, हम कैसे recognize करें कि अरे हमारे बच्चे को सच्ची में डिप्रेशन हो रहा है, और ये कैसे हम पता लगाएं कि ये बच्चा डिप्रेस्ड है कि अंडर प्रेशर है. वो दोनों चीजें अलग हैं. डिप्रेशन एक ट्रिगर का एक आउटकम है, तो वो आप कैसे पता लगाएंगे? काइंडली थ्रो सम लाइट.
ओके। सो मैम, एज यू से, दिस डिप्रेशन बहुत ही आजकल हर बहुत ही कॉमन टर्म हो गई है डिप्रेशन, एज यू एक्सप्लेन्ड। तो डिप्रेशन का हम ऐसे पता लगाएंगे कि अगर इफ द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग, मतलब उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, लगातार वो सैडनेस में चल रहा है और अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा है और बिल्कुल हैप्पी फील नहीं कर रहा है। मतलब कई बार तो उसकी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वो बेड से भी उठ नहीं पा रहा है, इतना मतलब सैड, बिल्कुल हेल्पलेसनेस, और किसी चीज में, किसी एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो है डिप्रेशन के साइन है बिल्कुल। अगर और डिप्रेशन के साथ सीवियर डिप्रेशन अगर उसको है, तो मतलब साथ में उसको एंजाइटी भी है और कुछ भी क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और किसी भी एक्टिविटी में उसको खुशी नहीं मिल रही है। तो दीज आर द सिम्टम्स और साइंस ऑफ द डिप्रेशन। बहुत ही सैड फील कर रहा है वो हर चीज में, और एक्सपीरियंस कर रहा है कि बिल्कुल परसिस्टेंट उसको फील हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस और होपलेसनेस फील हो रही है उसको, कि होप ही नहीं बची लाइफ के अंदर, कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता मेरा। हर चीज में नेगेटिव टॉक बोल बातें करेगा वो। तो दिस वे आप पहचान सकते हैं कि हाँ, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है बच्चा। या कई बार ऐसा होता है कि शायद मदर बोले कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा इज नॉट फीलिंग वेरी वेल, बट द फादर बीइंग अ फादर मे, एंड आई एम ओनली सेइंग मे, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, द फादर मे से दैट कुछ नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए वो फेक कर रहा है, या फिर वो डील नहीं कर पा रहा है। हमने भी ये सब फेस किया है, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल था। जब एक फादर ऐसे सब बोलता है, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट वो बच्चे पे, या चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस पे कैसे वो इम्पैक्ट करता डेफिनेटली अगर फादर सपोर्टिव नहीं है तो और ज्यादा वो डिप्रेशन के उसमें जाएगा, क्योंकि ये सब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया है उसके अंदर। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो सच में ही पढ़ना नहीं चाहता या फेक कर रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ है कुछ उसके अंदर, जो हमें मतलब हैप्पी हार्मोन रिलीज होने बंद हो गए हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर। तो ही इज नॉट फीलिंग हैप्पीनेस इन एनी एक्टिविटी। तो सभी चीजों से वो विड्रॉ कर रहा है अपने आप को। तो है? उसको और ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाएगा वो। जबकि ऐसे में उसको बहुत ही घर से सपोर्ट चाहिए, उसको एक ओपन कन्वर्सेशन चाहिए, उसको नॉन जजमेंटल एक घर में एटमोसफेयर चाहिए, कि चाहे उसका ट्रिगर कुछ भी हुआ हो, मे बी स्कूल में कुछ हुआ हो, कोई किसी तरह की बुलिंग हो गई हो, या फिर कुछ और तरह का कोई एक्टिविटी हो गई हो किसी तरह की उसकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से वो इतना फियर आ गया है उसके अंदर, इतनी एंजाइटी आ गई है, तो वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसको हर चीजों, सभी एक्टिविटीज से उसने इंटरेस्ट खो दिया है। तो अगर आराम से बैठ के ओपन कम्युनिकेशन नहीं किया, तो वो प्रॉपरली अपना नहीं बता पाएगा कि ही इज गोइंग इन डिप्रेशन। He or तो she is हाँ, ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन जजमेंटल बन के पेरेंट्स उसको सुने। और फिर भी अगर नहीं काम कर रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प, मतलब किसी थेरेपिस्ट की हेल्प जरूर ली जाए, अगर बहुत सीवियर उसमें जा रहा है वो। I think as a society, and I'm sure Anupama ma'am will agree with me when I say that as a society, हम इतने सोसाइटल प्रेशर के अंदर होते हैं कि वो मेरे नेबर या मेरा रिलेटिव या मेरे चाचा मामा का वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, क्योंकि उनके बच्चे ने इतना अच्छा कर लिया, वो जो प्रेशर होता है। और वो जो प्रेशर हम पे प्रेशर डालता है एज ए पेरेंट, और वो प्रेशर को हम सीधे ले जाके अपने बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। वो बच्चा जो शायद एक एवरेज बच्चा है और अबव एवरेज बन सकता है, because of our incapacity and inability to understand the child, we are actually taking him or her from an average performer to below average performer. Would you agree with me, Anupama? यस मैम। मैम एक चीज तो हमको बहुत जरूरी है समझना एज पेरेंट्स। मेरे को भी बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ मैम इस चीज का कि every individual has got different interest, different perception toward life, Correct. different intelligence,
different level of intelligence. Correct. हमारे कंट्री में मैम बेसिकली लॉजिकल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ी मान्यता दी जाती है, which is actually very funny because हम जितना डिजिटली और टेक्नोलॉजिकली बढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग उस हिसाब से उतना बढ़ नहीं रहा है. तो अगर आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल लड़का है और क्लास 11 में वो आर्ट्स के लिए ऑप्ट करना चाहता है साइंस की जगह, तो घर में बहुत बुरा माहौल हो जाता है. ऐसे लगता है जैसे किसी की आत्महत्या हो गई, मतलब वो मर गया है वो इंसान. एंड दैट चाइल्ड इज सुसाइडल. These are the words that has been used by a parent, that my child is suicidal, he wants to take arts. Now, can you change the mental frame of that parent? No, because he is No. coming from a background wherein उनके पेरेंट्स ने ये सुना समझाया होगा, सिखाया होगा, ऐसे स्कूल में वो पढ़ा होगा जहाँ पे बोला जाता होगा साइंस, साइंस का बच्चा सबसे इंटेलिजेंट, फिर बिल्कुल. कॉमर्स का बच्चा, फिर जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं वो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, जिनको और कहीं कुछ करने को नहीं मिलता है तो उनको आर्ट्स में डाल दिया जाता है. और तुम आर्ट्स लेना चाहते हो, तो अब उसकी सोचिए माँ बाप की क्या स्थिति है कि उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है जिससे वो आ रहे हैं वो बिल्कुल ही एकदम टूट गए. मतलब आई हैव सीन पेरेंट्स लिटरली गोइंग इनटू डिप्रेशन ओवर दिस कि मेरा Yes. बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है मैम. तो अगर ये माइंडसेट को हम जब तक नहीं चेंज करेंगे, माँ बाप का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है. बच्चा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों को जानता है, वो अपने पीयर ग्रुप से बात करता है, वो अपने टीचर्स से, काउंसलर से, सबसे बात करता है, पर वो हारता कहाँ पे है? वो हारता है अपने माँ बाप के सामने, क्योंकि वो माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं कन्विंस कर पाता है कि मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ. मैम हम तीनों ही आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं एंड थैंकफुली वी ऑल आर डूइंग reasonably good and okay. So I don't think so that arts, taking arts like history, geography, international relations, even psychology from which we all come from, this is all comes under the stream of arts. तो अगर हम लोग रीजनेबली वेल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों को रास्ता दिखाएं और हम उनके लिए एक मार्गदर्शक बने, तो आई एम श्योर दीज पेरेंट्स विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दीज आर रीजनेबल प्रोफेशंस. और अभी मैम अभी टाइम लगेगा मैम, वक्त लगेगा इस माइंडसेट को तोड़ने में. एक्चुअली मैम पेरेंट्स जो हैं वो साइंस लेने को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं. उनके हाँ, बच्चे साइंस ले तो मतलब बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं. अगर बच्चा आर्ट ले रहा है तो उनको कुछ अपने आप में बहुत ही डाउन फील होता है, बहुत ही लो फील होता है कि मतलब हमारे बच्चे दे आर गुड फॉर नथिंग, वो ऐसा समझते हैं अपने. और मैम Actually, मैं आपको I welcome Rajdeep Kaur, certified parenting coach. या एक्चुअली मैम जो कह रही है वो बिल्कुल सच है. और हमारे जो डिनर टेबल कॉन्वर्जेशंस होते हैं वो भी इस टॉपिक के अराउंड होते हैं, which is okay. I mean, it's all right when you're talking about success. Who doesn't like success? I love the taste of success. However, we are always talking about people who are successful and we are telling, oh, so and so ने ये किया है, वो इसके बाद अमेरिका चला गया, so and so ने ये किया. या फिर हम जब फोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है वो क्या कर रहा है आजकल, वो ये कर रहा है. हम कभी भी ये बात नहीं करते कि वो ये नहीं कर रहा है और वो करने की कोशिश कर रहा है. कोशिश जो वर्ड है ना, मेरे इसीलिए मैं हरदम कभी भी I have made it a point even in my career as a educationist, the word effort for me, just like you said, uh, appreciate the effort, not the result. Yeah. I've been actually doing it, and I'm not saying it is a boastful thing, but I really have adopted that word because I'm I have only heard in my family or in my near and dear ones, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो आईएएस हो गया है, वो टेक्नोक्रेट हो गया है, वो क्या नहीं कर पा रहा है और वो क्यों नहीं कर पा रहा है और हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं. और उसका आईक्यू कम है पर उसका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, इसके बारे में जब हम ग्रो हो रहे थे तो बातें नहीं.
क्योंकि उस टाइम पे हमारे आईक्यू के बारे में बातें होती थी. The fact Right. that I love hugging, that I love to be kind to people, that I want to reach out to people, that even as a 21-year-old, I wanted to open an NGO. And I'm not talking about myself, I'm talking about a person that uh, I want to throw a party for people who are working for me and make them happy. These are all big uh, green flags of emotional intelligence. We never Yes. spoke about it when we were growing up. But in some families, luckily, we were lucky that our parents taught us a little bit and we studied and we learned it. Now, to think that even today, despite having so much of digital intervention, so much of exposure, if the parents are not learning about it, and they are actually their pressure is impacting the children, that give me two strategies, Pushpa ma'am, that a parent will help a overwhelmed child. वो बच्चा जो प्रेशर में आ गया है, वो पेरेंट दो स्ट्रैटेजी बताइए वो कैसे हेल्प कर सकता है. केवल सिंपल से दो स्ट्रैटेजी. कम्युनिकेशन आप बता चुके हैं, उसके Yes, अलावा ma'am. दो आप बताइए. Okay. So, ma'am, my second is self-care. बच्चे को हाँ, सेल्फ केयर रूटीन सेल्फ केयर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा रूटीन से एक्सरसाइज करे. उसको बचपन से ही शुरू से ही मेडिटेशन सिखाएं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएं और कुछ उसको हॉबीज के अंदर उसको डालें. मतलब हर साल जो समर वेकेशन होता है तो डेफिनेटली पेरेंट्स को एक प्लानिंग करनी चाहिए कि इस बार की समर वेकेशन में ये वाली स्किल जो है ये मैं इन वेकेशंस में अपने बच्चे को सिखाने वाला हूँ. और डेली रूटीन में कुछ हैबी हॉबीज के लिए टाइम बच्चे का रखना चाहिए. एक प्रॉपर रूटीन हो सेल्फ केयर का कि ये इस टाइम में आपको 10 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना है, 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है. किसी ना किसी फॉर्म में जो है बॉडी से स्वेटिंग जरूर होनी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज द हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी. तो सेल्फ केयर रूटीन. और एक दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि एक्ट ऑफ काइंडनेस. दिन में एक एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है उसका एक टारगेट बच्चे को देना चाहिए कि पूरे दिन में एक एक्ट ऑफ काइंडनेस जरूर करें. एंड वो एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है दे हैव टू डू इन देयर राइट इन देयर जर्नल. उस जर्नलिंग में आप करेंगे उसमें वो ग्रेटिट्यूड 5 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करें दिन भर में. और एक एक्ट ऑफ काइंडनेस 5 चीजें कुछ भी हो सकती हैं कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे सांस अच्छे से आ रहा है. आई एम ग्रेटफुल कि आई एम गेटिंग 3 टाइम फूड टू ईट. आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास मदर है फादर है. आई एम ग्रेटफुल की बुक्स टू रीड. तो ग्रेटिट्यूड की हैबिट डालना और एक एक्ट ऑफ काइंडनेस. एक्ट ऑफ काइंडनेस में कुछ भी हो सकता है. जो बर्ड्स हैं उनको कुछ ग्रेन्स डाल दिए, बाजरा डाल दिया, वाटर रख दिया. डॉग्स के लिए स्ट्रे डॉग्स हैं उनको चपाती डाल दी. तो इस तरह का कुछ भी एक्ट ऑफ काइंडनेस. किसी घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कोई हेल्प कर दी. कोई कोई सैड है तो उसको स्माइल दे दी. किसी का हालचाल पूछ लिया, मम्मी व्हाई यू आर सैड, व्हाट हैपेंड टू यू. खुद एक स्माइल दे के मम्मी को भी हैप्पी कर सकते हैं. तो दिस दीज थिंग विल वेरी मच हेल्पफुल. और एक वेरी ट्रू. क्रेडिट लिस्ट बच्चा अपना बनाए. मतलब हाँ, खुद को क्रेडिट दे कि मैंने ये काम किया इस दिन भर की. शाबाश, खुद को क्रेडिट देना सीखे. तो दिस विल ऑल्सो गिव ग्रेट हेल्प टू द वेरी चाइल्ड. ब्यूटीफुल पॉइंट्स मैम, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स. अनुपमा मैम, जब हम लोग ग्रो हो रहे थे ना, तो आई एम श्योर पुष्पा मैम एंड ऑल्सो राजेंद्र कौर जी विल अग्री विद मी कि हमने अपने कुछ कुछ रोल मॉडल्स बनाए हुए है ना. लाइक फॉर मी माय रोल मॉडल वाज माय म्यूजिक टीचर, ऑल्दो आई croak, I don't sing, but I wanted to be a singer, I wanted to be an actor. So I had a Ismail Alkazi जो आजकल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाते थे. मैं ढूंढ ढूंढ के उनके बारे में पढ़ती थी. आई जस्ट कि शायद कभी मौका मिल जाए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लूं. वो अलग बात है कि कभी अलाउ ही नहीं किया किसी ने, वो अलग बात है. बट पॉइंट हियर इज हमारे टाइम में एक रोल मॉडल जो होते थे उनको, वो एक अच्छी चीज हुई थी हमारे टाइम में कि रोल मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे हमारे पेरेंट्स ने तोड़ा नहीं, उसे डिसवेड नहीं किया, उसे ये नहीं बोला क्या है ये सब कुछ नहीं होता है, ये लोग कौन है. They allowed us hero worshipping little bit.
आज की तारीख में हालांकि हीरो वर्शिपिंग के अपने बहुत पिटफॉल्स हो सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी कि एक एवरेज बच्चा जिसको विराट कोहली बहुत पसंद है, वो विराट कोहली को जी जान से चाहता है और उसकी पूजा करता है लिटरली। अगर घर में ऐसे लोग होते हैं जो उसको पसंद नहीं करते और उसके खेलने के टेक्निक को या उसको जितना फेम और वो मिला है उसके बारे में गलत बोलते रहते हैं, वो अपने तरीके से बोल रहे हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है, पर ये जो टीनेजर है वो उनको ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो सुन नहीं सकता। फॉर हिम, एंड दिस टीनेजर इज एस्पायरिंग टू बिकम अ क्रिकेटर, राइट? नाउ my point here is for that kid, that role model is that विराट कोहली, जो कि एक नॉर्मल दिल्ली का चांदनी चौक जैसे एरिया से आके और नॉर्मल माइंडसेट के साथ में आके एक अचीवर के माइंडसेट को उसने अचीव किया with the help of dedication and changing his, that is NLP. I strictly believe that is NLP. उसने पूरा अपना थिंकिंग को चेंज किया, बॉडी को चेंज किया, and now is a role model. I want to ask you, why are we not encouraging our parents, or why our parents have lost that thing that okay, कुछ तो रोल मॉडल्स रखो? क्यों हमारे पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते और हम कैसे समझा सकते हैं? मैम एक्चुअली जो हमारे टाइम और अभी टाइम को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे टाइम में हमारा सोशल मीडिया का एक्सपोजर वाज वेरी लिमिटेड। मोस्टली इट वाज थ्रू टीचर्स और इट वाज थ्रू कॉन्वर्सेशंस, एंड जो हम दूरदर्शन पे प्रोग्राम्स देखते थे, इफ वी वुड वॉच एंड दैट वाज अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैचेस आ रहे हैं या कोई मूवी टाइम है या चित्रहार का टाइम है। आई कम फ्रॉम दैट एरा मैम, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच चित्रहार, एंड हम लोग ऐसे सीरीज देखते थे which was supposed to Me be also, ma'am. which was supposed to be very high on moral ground. आजकल मैम इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे बॉम्बार्डमेंट है, पेरेंट्स को एक चीज का बहुत मेजर डर रहता है, वो किसको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। Hmm. अगर किसी Right. गलत इंसान को उन्होंने, आई आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल, आई डू नॉट से who's right or wrong, but there are a lot of people who are, in order to make quick money, they are rising up like influencers हो गए या ये सब है। तो बच्चे उनको देख के लगता है कि एक शॉर्टकट मेथड है, चलो हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाए, यूट्यूबर बन जाए, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए। मैं अब यहाँ पे मैं मेरा इंटरव्यू करूंगी, आई हैव टू इंटरव्यू यू, एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दीज फेक role models. I'm saying that parents as adults have to take responsibility for that, that they have to introduce their children to role models who are worth their salt. Because having role models in front of you, it can be anybody. Give a book, a small book by um, a quote book, you know, give it to them. Maybe they will not read it. But if you keep repeating that quote 4 times in a day, they will say, मैं बोर हो गया हूं मम्मा, एक ही चीज बोल रहे, कौन बोल रहा है ये बताओ। 10 में से एक बच्चा तो वो कौन है करके जानने की कोशिश करेगा जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं। मेरा हाँ, तो कहने मैम इसमें क्या है ना मैम, इसमें पेरेंट्स का इशू ये है कि पेरेंट्स क्वालिटी टाइम नहीं देते ना बच्चों को। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, हमारे टाइम में स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा होती थी। एग्जैक्टली जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, सोने से पहले ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरी सुना रहे हैं, कृष्ण की कहानियां, राम की कहानियां। तो ऑल दीज थिंग्स, माइथोलॉजी बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। करेक्ट। आज की तारीख Right. में Right. बच्चा जब सोने जाता है तो हम कोई भी एक स्लीप रिचुअल कोई भी नहीं फॉलो करता है। खाना खाए इमीडिएटली सब अपने अपने कमरे में, दे डिसअपियर इन देयर रूम्स विद देयर मोबाइल्स इन देयर। मदर का सबसे बड़ा कंप्लेन है, Yes. अब मैंने सारा काम कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, आई वांट टू स्टिक विद माय मोबाइल। फादर ने बोला मैं ऑफिस से आया हूँ, Hmm. मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, आप लोग अपने कमरों में जाओ। तो फादर इज ऑन हिज मोबाइल, फादर माइट बी वाचिंग अ क्रिकेट मैच, मदर मस्ट बी वाचिंग टीवी सीरियल, कुछ देख रही होंगी Serial. या Hmm. नेटफ्लिक्स देख रही होंगी। बच्चे को तो ओपन फील्ड मिल गया है। Hmm. तो मैम एक डेजिग्नेटेड
शेड्यूल टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास हफ्ते में नहीं है, पूरे हफ्ते, संडे को स्टोरी टेलिंग टाइम रख लो, आधा बहुत घंटा, जरूरी, बहुत आधा जरूरी। घंटा का, 40 मिनट का, Yeah, लंच टेबल पे everybody is going to share one good story yeah, about whom they got inspired with. Yeah, who yes. is their role model? Nice. It can, mine was a teacher, Yeah, and you yourself can become a role model. yeah. Like, for example, as a parent, if you have been struggling with something really bad, आप अपनी लाइफ में आप Hmm. एंगर इशू से स्ट्रगल कर रहे हो, या आप अपने माइंडसेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, and you, over a period of time, you worked with it, you can speak about this with your own child and Yeah. tell them that I was operating from this level, and now I've become much more calmer, and I'm operating from here. So the child may not respond to you immediately, but after a period of time, he will definitely, in his subconscious mind, it will come to him कि हाँ, मम्मी पहले चिल्लाती तो बहुत थी, अभी थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो पहले तो आप अपने आप से, चैरिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम होम, आई फील। Exactly my point. Right. Yeah. तो That's precisely, Anupama, ma'am. That is what I was trying to actually, kind of deviate that conversation. That what as a parent does not realize is that what power he has. He's always looking and seeking power outside. A power of a parent is introspection within and making himself or herself a better role model for the child. It's not very difficult. Like, for instance, I'll give you an example. Now it's become very common for women also to have a drink or two. I mean, it's like a common practice everywhere. I do not know about outside, and from what I'm seeing, it is pretty much outside. Now, when we were growing up, women, of course, did not indulge in drinking at all, very less. And my point is not about drinks. My point is how you present it. Do you present drinking as a vice, or do you present drinking as a one time family connection where father mother are sitting with a glass of wine having a good time? It will be viewed very differently. Or a vice where the father doesn't know what he's talking after a drink and the mother is going ballistics because the father has lost his, you know how it is, marbles. Now these are two different situations, but the vice is the same, drink. A glass of wine is bringing the family together in a nice setup, right? And a glass of hard drink, same hard drink, is actually, so it is how you perceive that situation and how you move on with that situation. That is why when ma'am is saying that things have changed, 100% I agree with you that things have changed. Yet, what was good in those days cannot be forgotten. शायद अभी मेरे जो Yes. मेरे एज के लोग हैं उन सबके ग्रैंड चिल्ड्रन होने शुरू हो गए, दे ऑल हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, आई एम इन दैट एज नाउ। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मेरे टाइम में जो बहुत ही अच्छा था और जो शाश्वत, हिंदी में संस्कृत में एक वर्ड है यूनिवर्सल, शाश्वत, वो कभी गलत नहीं हो सकता है, चाहे डिजिटल मीडिया कितना भी आ जाए। माँ का प्यार शाश्वत रहेगा और पापा का प्यार शाश्वत रहेगा। तो फिर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी तो शाश्वत रहेगा ना। इन लोगों का अपने बच्चों के लिए जो सोचना है और कनेक्ट भी शाश्वत रहेगा या यूनिवर्सल रहेगा। सो नाउ आई एम कमिंग टू दी third question, which I'm coming to ma'am only, Anupama ma'am, that we have spoken enough in terms of, expectations, anxiety, and everything. What do we do about just two strategies? There is a child whose self-worth the child is losing. The child doesn't know what to do. How will you help that child? मैम, पहले तो ये चीज समझना है कि उसका सेल्फ वर्थ लूज क्यों हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, not all children lose their self-worth. So we have to see the situation from the environmental factors also. That is how the child is being treated in the school. उनके जो peer group है उसका क्या उसके ऊपर influence है, and even at the home front. अगर at every juncture, at every place, let's say even in school, peer group में भी
if the bacha is being criticized, humiliated, blamed, labeled, all these things are being done on a very regular basis. मैम ये एक दिन में नहीं डेवलप होता है. लो सेल्फ स्टीम या लो सेल्फ वर्थ. I will say it starts off at a very early age in life, and माँ बाप बहुत ही कैजुअली इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं, बट उसका बहुत डीपर इम्पैक्ट होता है. तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम नहीं कर पाओगे. आपने स्टेटमेंट दे दिया, बट आपने उस बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ गया. वो जाके मैम एक चीज मैं इस चीज पे जरूर आपको ऐड करना चाहती हूँ. इन द ग्रोइंग एज, children are, especially children who are in the age of 6 7 5 6 7, they're very narcissistic in nature. I'm not talking about narcissistic personality. Narcissistic in nature is basically it is everything is centering around them. अगर कुछ अच्छा हुआ तो मेरी वजह से, अगर कुछ बुरा हो रहा है घर में तो भी मेरी वजह से, Definitely. अगर मम्मी पापा भी लड़ रहे तो मेरी वजह से, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मेरी वजह से. तो दैट नार्सिसिज्म which is word is being used, इसको कॉइन किया गया है छोटे बच्चों के लिए कि हर कुछ मेरे से ही शुरू होती है और हर कुछ मेरे से ही खत्म होती है. तो अगर यंग एज में ही आपने शुरू कर दिया है उनको बोलना, rather than praising, you have gone to the level of तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, मैं देख लूंगी. It's a very casual statement, but over a period of time, they start developing this low self-esteem कि अगर मैंने ये पतीला उठा के टेबल पे रखा और पिछली बार गिर गया था तो उसके वो मेमोरी में होगा. एंड मदर शाउटेड, ओ माय गॉड, व्हाट हैव यू डन, यू वर नॉट इवन एबल टू डू दिस, डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम. उसके दिमाग में वो बैठा. So how can you reframe this sentence? You can reframe this sentence just by saying, हो गई गलती, मेरे से भी होती है, let's see how we can do it, clean this up together. बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, क्लीनिंग अप प्रोसेस में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए ताकि उसको पता लगे कि हमने जो गलती की है उसको हम ठीक सुधार कैसे सकते हैं. उस गलती को लेबल मत. अभी वो बच्चे ने उस चीज को सीख लिया, अब उस चीज को बच्चा मॉडल करेगा अपनी लाइफ में. अगर स्कूल एनवायरनमेंट में भी अगर टीचर उसको बार बार बोल रही है, यू हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश योर मैथ्स होमवर्क, यू स्कोर्ड 7, you scored 8. Now she is highlighting what is the problem with the child rather than trying to resolve the issue or the problem. तो उनके जो पीयर ग्रुप है उन्होंने भी उनको नेम कॉलिंग करना शुरू कर दिया, नाम रख दिया कुछ है. मैम मैं अपना एक एग्जांपल दे सकती हूँ. आई वाज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स and I grew up with lot of criticism, and I've mentioned this in my book also, with lot of criticism and very low self-esteem that I was not good in maths. And my maths teacher used to call me 420. It is still there in my mind. And how much I have worked hard on it, that I've been able to develop that emotional intelligence, as you're saying, emotional resilience, emotional competence, whatever word you want to use. But now, when I'm at this age and I'm trying to talk to you about it, what happens to a child who's at the age of 10, 11, 12? You can see the impact it has on the child, and it completely changes the whole world around him. One small word. So, ma'am, mera simple sa ye hai, parents have to be very, very mindful when they are talking to the child, how they are talking to the child, and what they are talking to the child. And second thing, if they have said something which is very wrong, apologize. Yeah. Apology immediately bridges up the gap, and the child also starts realizing कि पेरेंट्स से भी गलती होती है. तो very beautifully put, ma'am. apology करिए, उनको बताइए अगर उनकी कोई गलती है तो उसको गलती बोलने की बजाय talk about what you can do to improve rather than गलती. तो ये 3-4 चीजें मैम, इन सब चीजों को अगर हम बहुत ही छोटी उम्र से स्टार्ट कर दें तो सेल्फ वर्थ का तो कोई इश्यू होगा ही नहीं. बच्चा एकदम
Ma'am, Can I'll add one more, and whatever points you've given are absolutely bang on and excellent points, I must say. And I can also share an experience, of course, without quoting, that when a child who was a national player was, called because was not attending classes, and she was called on the by the maths teacher in front of the math or chemistry, I don't remember now, in front of the entire class. And this child is a national netball player, remember? Okay. So the on one vertical is really high achiever, on another vertical is not able to perform. So was called and asked to figure out an answer on the main blackboard. Just see what would be in the morning. The child has got a medal, and the teacher is now calling the same child and belittling the child in front of the board and in front of the each every class. Mhm. And that teacher is being when the teacher is being asked why did you do it, is the answer of the teacher is that because I want that child to do well also in this vertical. Uh-huh. For a normal parent दिल से हाँ इसमें क्या गलती है, नहीं Mhm. समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती है। Mhm. आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो उस बच्चे का वो जो मेडल पाना उस दिन का, वो हाँ. उसी के लिए अगले 10 दिन तक वो जो हम्म. मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, बिल्कुल. उसको उसको सेफगार्ड करेगा। वो स्कैफोल्ड हम्म. बन के खड़ा रहेगा कि मैं गिरूँगी नहीं, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, मैं गिरूँगी नहीं, मैं एक नेशनल हम्म. प्लेयर हूँ और हम्म. मैं 30% से मैथमेटिक्स में 50% तक ले आऊँगी। ये हम्म. कॉन्फिडेंस उस बच्चे में वो वाला जीत, वो विजय देगी। और हम्म. उस विजय को ही अगर कोई तोड़ दे कि तुम हम्म. ये क्या है, यू नो दिस इज सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू सेड दैट सेल्फ वर्थ जो एक ऐसी चीज है जो केवल अडल्ट ही बच्चे का खराब, बिल्कुल. बिकॉज अगर अडल्ट दूसरे बच्चों को रोकें कि आप मेरे बच्चे का सेल्फ वर्थ नहीं खराब कर रहे, वहां पे भी हम्म. अडल्ट responsible है because they are not stopping other children. So now हम्म. I'm coming to Pushpa ma'am, and that's going to be my last question actually. हम्म. Because we are still left with about 5, I'll take one more question, maybe a short one. That although I need to, do a podcast on sexual predators versus teenagers, but हम्म. many cities in India, and I'm talking about north of India because I've lived there a lot. I'm from south, and I know over there it is a little less. North of हम्म. India, the moment the girl comes, and I'm only now talking from the girl's point of view, boys हम बात नहीं करेंगे। हम्म. बच्ची हमारी 8वीं 9वीं में आ जाती है और वो आके बोलती है कि मेरे को ये परेशान कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं इन टायर बी एंड टायर सी सिटीज। हम्म. पहले हमारे पेरेंट्स उस बच्चे को ही ब्लेम। मुझे 2 स्ट्रैटेजीज प्लीज बताइए जो पेरेंट्स समझें कि उन्हें क्या करना है ऐसे सिचुएशन। Ma'am, could you repeat your question, please? My question is, when the parents start blaming the young growing girls for attracting attention of sexual predators, तो Okay. ये हम कैसे अपने पेरेंट्स को समझाएं? 2 स्ट्रैटेजी, एक हम्म. स्ट्रैटेजी आप दे दीजिए, एक मैम दे देंगे, इफ मैम इज हम्म. ओके विद दैट आई कैन आल्सो ऐड इन समथिंग कि वो हम्म. क्या करें। वो क्या, पहली बात तो पेरेंट ये गलत है कि जब वो अपने बच्चे को विश्वास नहीं कर रहे हो कि कुछ हो रहा है, तो वही हम्म. एक बात गलत है। और हम्म. पहली बात वो अपने बच्चे को क्या समझाएं, उस बच्ची को क्या समझाएं? उस बच्ची को ये समझाए कि सेटिंग बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके। सेटिंग बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा उसका सेल्फ वर्थ बढ़ाए गर्ल का. ओके। तो सेल्फ वर्थ की बारे में अभी हमने बात की है कि कैसे सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में हमने बात किया. तो सेकंड पॉइंट इज कि हमें उसकी बाउंड्री सेट करनी है कि Would you like to take Anupama ma'am? एक minute, I'll get back to ma'am. Would you like to take this question? yes, I would like to take मैम मेरे पास इस पे बहुत कुछ बोलने को है मैम. एक्चुअली मैम ये थोड़ा यंग एज से स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है मैम. जो प्री टीन्स का उम्र होता है ना, उसमें बच्चे अपनी सेक्सुअलिटी को समझना शुरू कर देते हैं. दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 11-12. दैट इज द टाइम दे स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. उससे पहले सब बराबर होते हैं. 9-10 की उम्र में लड़का लड़की सब एक साथ खेल रहे होते हैं.
वो जब आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपके जब ऑर्गन्स डेवलपमेंट होने लगते हैं, दैट इज द टाइम यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि ये लड़का है और ये लड़की है। उससे पहले माँ बाप को बच्चों के साथ बैठना है, not when they enter the preteens, and they have to teach them what is a good touch and what is a bad touch. ठीक है, इम्पोर्टेंट मैम, आपने सुना होगा, मैं बहुत सारे सेशंस वर्कशॉप दे चुकी हूँ पॉक्सो पे। इसके ऊपर बच्चों को स्कूल में भी ऐसे वर्कशॉप्स कराने चाहिए जहाँ पे बच्चों को बताना चाहिए कि लड़कियों को, आई एम नॉट टॉकिंग एज यू सेड फ्रॉम द बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि कहाँ का टच सही है और कहाँ का टच गलत है। अगर वो बच्चा 8-9 साल की उम्र से ये चीज समझना शुरू कर देगा तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली टूल्स एंड टेक्निक अपने अंदर डेवलप कर लेगा, और माँ बाप को बिल्कुल ओपन होना चाहिए about this conversation with the child. They have to be very open. If the child comes and complains कि मम्मा आज ये भैया ने मेरे को यहाँ पे ऐसे ब्रश किया या बस में मैं जा रही थी ऐसे हुआ, they should not brush it aside by saying कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता बेटा। This is what I was. ये स्टार्ट होता है मैम, ये अब्यूज यहाँ से मैम, ये अब्यूज एक्चुअली घर से स्टार्ट होता है। पहले कहीं और पे हुआ, अभी घर पे इमोशनल अब्यूज हो रहा है। पहले That's called mistrust. Mistrust. मैम आई वुड ऐड ऑन टू दिस, ये मिस्ट्रस्ट से ज्यादा है गिल्ट एंड शेम, सोसाइटल शेम, दे वांट टू ब्रश इट असाइड। Yeah, that comes. That is the second stage. I mean, I'm not disagreeing with you. Why I'm saying, because I've gone through as a principal of school when I was principal, and then uske pehle bhi in Punjab. And I'll take 1 minute of yours before I give the thing to you. The mother is being told by me that your child is coming and telling me, is reported that X person is, and she's not comfortable, and a male teacher, she's not comfortable, and I can't do anything because I'm not in that position. Your child has just confided in me. You have Right. to take it to the next level. Mistrust is why I'm saying the mother is not even ready to accept. मैम दैट्स कॉल्ड डिनायल। One is denial, second is actually mistrust. मैम आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। मैम मैं आपको बताती हूँ मैम, एक तो आपने मिस्ट्रस्ट बोला, दूसरा डिनायल क्यों होता है? डिनायल इसलिए होता है क्योंकि डिनायल में रहना बहुत आसान होता है, Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत मुश्किल है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बच्चे की, Correct. तो आपको कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, You will have to take an action, which बिल्कुल। for which parents, मैम इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। Parents who have seen this movie Highway, Yeah. there is a monologue at the end Yeah. of the movie where Alia Bhatt talks about some kind of abuse that was happening from the childhood, in which Yeah. the girl was, I think, 5-6 years old. It Yes. was happening. बच्चे ने मुंह पे आके सबके सामने बोला, parents are totally not in agreement with the child and they tell the child to shut up. A Yes. girl who's about to get married. ठीक है मैम? तो मैम ये सोसाइटी में जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने 2 चीज मांगी, मैं 2 चीज ये बोलना चाहती हूँ। बच्चे के अंदर अवेयरनेस बहुत यंग एज से क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, जब Correct. बच्चा 5-6 साल का हो, और उसको गुड टच बैड टच सिखाइए। Correct. अगर उसके मन में कोई भी ऐसे कोई विचार आते हैं जिसके बारे में, क्योंकि बच्चों को नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, और जब आप उनसे जाके ये बोलते हैं कि बच्चे ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, देन इट इज कंसिडर्ड बैड, डर्टी इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो जब वो एक्चुअली में जब वो 12, 13, 14 साल का हो जाता है, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज सेट है कि दीज आर बैड थिंग्स टू टॉक अबाउट, तो कभी किसी से बात नहीं करता है मैम। Yes. So what ma'am is saying is that boundaries वाला जो उन्होंने बोला कि ये boundary, ये is anyone whom you do not know can only come this much and not that far, is that word boundary actually can be applicable over there. And secondly, when in a family, sex, touch, hug becomes a taboo,
when the parents are not very open about their own personal relationships in terms of just putting an arm around and holding hands and talking and appreciating each other, when that becomes a taboo, then such problems become even bigger, because the child feels मैं क्या बात करूं, इनके बीच में तो वैसा वाला रिलेशन ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं मेरे अंदर की क्या फीलिंग्स आ रही है. It's a very. और मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, हमारी सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में आई डोंट नो व्हाट व्यूज यू हैव. जब लड़की जैसे जैसे बड़ी होने लगती है, वो अपनी मदर के बहुत करीब हो जाती है. मदर टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट हर ग्रोइंग अप, अबाउट हर menstrual cycle, about her hormones and all. The moment the child gets into his teens, the boy, Yes. the mother distances herself from the child. Yes. And the moment the child starts growing up, तो बच्चे के अंदर इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस कहाँ से डेवलप होगा? आपने तो उसको बोल दिया shut up, go in that room, sleep Yeah. and then in that room, you cannot come and hug me, you cannot hug your sister, you can Yes. only talk to me from a distance, you cannot Yes. put your arms around me. तो उसके लिए आपने एक एनवायरनमेंट ऑलरेडी, मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है. अब आप Yes. कुछ नहीं कर सकते. जब बच्चा बड़ा होता है और जब उसकी शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो उसके घर वाले या उसकी वाइफ बोलती है कि ये तो इमोशनली टोटली अनरिएक्टिव है. Correct. We can just keep on adding over there, but I'm point just over telling here you right now. कि थोड़ा सा जैसे मैम ने बोला कि अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो तो थोड़ा सा बाउंड्रीज खोल भी दो अगर लड़का है. दैट्स ऑल. नहीं, you're right. Actually, आपका पॉइंट बिल्कुल, when I say boundaries, कि बाहर वाले जो जैसे कोई टीचर हो गया, कोई वो हो गया, आपको पता होना चाहिए कि वो आपने जो बोला गुड टच बैड टच, वो उस बाउंड्री के रेल्म में आता है, कि ये बिल्कुल गुड मैम. टच और बैड टच वो 10 से और 12 के बीच में वो उस रेल्म में आता है. नॉट कि पेरेंट्स बच्चे के बीच में बाउंड्री नहीं है, ये पेरेंट बच्चा एंड आउटसाइड सेक्सुअल प्रेडेटर के बीच का बाउंड्री की बात हम. बिल्कुल मैम. So, बिल्कुल. आई टोटली एग्री. या एंड ये बहुत ही डीप टॉपिक है. इस टॉपिक के लिए एक और 1.5 घंटा हमें चाहिए होगा विथ मोर इनपुट्स, एंड आई विल एंड द पॉडकास्ट ऑन दिस. इट वाज अ fabulous podcast, I must say. I'm not saying because I spoke, because both of you, my renowned guests, with so much time you have given me, and thank you so much. It's always a pleasure to meet you both and listen to you. Thank you. We shall meet again, and I promise to bring connect and care, connect with our children, and to take care of our future. Bye bye. Shabba khair. See you soon. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank Bye. you. Bye. Thank you.